Sir, should we start or wait for a minute? So we can wait for a minute, then we can start. So Vijay sir, the data set, I mean the ERD you are using, can we export that and share it with the students so that they can practice, import it in SQL Server and practice the queries? That will be great. Sure. I'll also share the questions that we were discussing in the class. Yeah. Along with the data set, if you give the questions, then it will be Yes. easy to. All right. Let's get started. I'll quickly share my screen. Let me know if you guys can see this. Visible? Yes, sir. All right. Let's start with a warm-up question. Okay. You can see the question on the screen, right? Yes, sir. Before you start solving the question, let's have a look at the ERD. Okay. Again, the same banking data set. We have employees, branch, accounts, transactions, and customers. Okay. Now, here's the question. So ideally, after reading this question, which data set would you like to see first? Sir, total salary. But there isn't a salary column, no? Right? See, there are 5 Yes, sir. Yes. tables. Right? So if you want to take branch doesn't have salary, right? Accounts is a database which only contains. Sorry? Employees table. Correct. Let's start with employees because employees has a salary and it has a branch code. Okay. So okay. Just a quick look at the data. Employee ID, first name, last name, salary, and the branch code. Now tell me, what should I do? How many parts do you think are there in this question? So first there is total salary is a part. Okay. Let's solve that first. How do you think we find a total salary? Also, it isn't just total salary, it is total salary in each branch, right? So what I'll do is we'll try to group by total salary मतलब sum करना पड़ेगा हमको and branch wise देखना है तो we'll group by, put the branch code here and then sum of salary. Okay, this should give me branch wise salary. Okay, clear, right? It's clear, right? Yes, sir. Okay, now comes the second part, which is displaying only total salary if it is greater than 5,000, right?
or let's make this, you know, a lakh. Yeah, display only if the total salary is greater than 1 lakh. So Having sum of Right. salary greater than 1 lakh. right. So clearly, if you don't even know SQL basics, इतना तो समझ आ रहा है कि ये एक filtering step है, right? अब filtering के लिए we know there are two keywords, where या फिर having. अब जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि where तभी लगाओगे अगर ओरिजिनल डेटा सेट में फिल्टरिंग कर रहे हो. If you have compressed it using group by, then you have to use having. So now that we have compressed it using group by and we have one entry per each branch, so we will do it using having, right? So having sum of salary greater than 1 lakh. Clear? Any doubts on this? No, sir. All right. I'll just allow 10-15 seconds for others just to absorb what happened, what I explained. Just look at the code and then we'll move on. All right. So now, today we'll be working with a new database, okay, which is sales database, okay. We have worked enough with banking. Now let's work with a new data set, okay, which is sales. Now let's look at the ERD diagram for this. Okay, just 3 tables. Visual, right? Yes, sir. So there are customers, there are products, and there are transactions or sales order table, right? Sales order is a transaction table only, but which will have a order number, what is the quantity ordered, price, right? Order date, what is the date, along with the date, what is the quarter, what is the month, who is the customer, all these details, right? Products means what is the product code, what is the product line, and what is the price, right? And customers table has customer details like name, address, city, state, postal code, right? There is no information of seller. I think it's just customers who are buyers, who are buying stuff. Clear on the data set, right? All right. Then let's start solving questions here. So the question here, first question here is this. There are 3 data sets, remember. Products, customers, and transactions. ओके क्या आ रहा है दिमाग में पढ़ के? सर पहले तो ये ऑर्डर्स को हम ग्रुप बाय करेंगे सर. ठीक है, मतलब ग्रुप में जाने से पहले ऑर्डर्स टेबल है ये पता चल रहा है ना, राइट? यस सर. यस हाँ, सर. तो उसमें चलते हैं पहले सेल्स ऑर्डर. ओके ओके ठीक है. अब ग्रुप बाय करना है, राइट? ग्रुप बाय किस पे करो? एक बार डेटा देख लो. ऑर्डर नंबर है, उस ऑर्डर में कितने क्वांटिटी ऑर्डर हुए हैं, इंडिविजुअल प्राइस क्या था, टोटल सेल्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ quantity ordered and price each, right? I think that's the case. Then what is the order date? Status क्या है, shipped है, और भी कुछ हो सकता है. हम लोग यूनिक वैल्यूज देखेंगे तब पता चलेगा. क्वार्टर आईडीज डेट से ही निकाला है कि कौन सा क्वार्टर है. फर्स्ट 3 months of an year are the first quarter, right? So this is Feb, hence first quarter. Month, year, product code, who is the customer that bought it, and what is the deal size. कितना बड़ा मे बी शिपमेंट है और मे बी बेस्ड ऑन द
ऑर्डर वैल्यू, द अमाउंट द कस्टमर इज पेइंग, किसी लॉजिक से सेग्रीगेट करके स्मॉल, मीडियम और शायद लार्ज भी किए हैं, राइट? ठीक है, दिस इज द डेटा। नाउ टेल मी, अभी मैं अगर ग्रुप बाय करूँ तो किस पे करूँ? सर स्टेटस और डील साइज के हम लोग ग्रुप बाय करेंगे दोनों को। स्टेटस में या ग्रुप इसमें? ठीक है, ओके। अब इसको व्यू करो, राइट? अब आगे Sir, where the date is greater than 1st August 2003 and less than equal to ठीक है, समझ गए। December 31st 2003. ठीक है, एवरीबॉडी अग्रीज टू दिस, राइट? किसी और कुछ आंसर देना है या इसमें कुछ चेंजेस करना है? Write where before the group by. राइट, उसको अगर मैं चेंज कर दूं और कुछ इशू है, या दिस इज फाइन अकॉर्डिंग टू यू? ओके, ठीक है, अभी करके देखते हैं। अच्छा, अभी अगर इसको प्रिंट कर दूं तो क्या ही आएगा? दो ही कॉलम आएंगे, स्टेटस और डील साइज, राइट? दो कॉलम आएंगे ना? करके देखते हैं। Yes, sir. इज दिस द आउटपुट दैट यू एक्सपेक्टेड? ऐसा आना चाहिए था, और डू यू थिंक कुछ और आना चाहिए था? ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। फेच ऑल द ऑर्डर्स, हमको जस्ट डिस्प्ले करना है ऑल द ऑर्डर्स, वी डोंट नीड टू ग्रुप बाय और डू एनी सच स्टफ। तो ये सिंपल ऐसा है, ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले करना था ऑल द ऑर्डर्स। और एक चीज हमने मिस किया है, स्मॉल शिफ्ट ऑर्डर्स। जैसे यहाँ पे एक स्टेटस था, डील साइज का, राइट? तो यहाँ पे और एक फिल्टर लगेगा, क्लियर? यही करना था, ग्रुप बाय नहीं करना था। क्लियर आशीष, अमितोष? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कभी कभी ना, मतलब ऐसा डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है। ये अगर अब ये डेट फॉर्मेट में है, नहीं होता तो कोई एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, ठीक है? सो राइट, इसको तुम टाइप कास्ट करोगे डेट फॉर्मेट में। एवरीबडी नोज व्हाट टाइप कास्टिंग इज और कन्वर्टिंग टू अनदर फॉर्मेट इज, राइट? Yes, sir. ठीक है, अभी मान लो ना, मतलब जैसे ये हम पोस्ट भी सीक्वल में कर रहे हैं, राइट? ये डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है डेट टाइम फंक्शंस, ठीक है? मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू हैक कि कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि तुमको इंटरव्यूअर ने किसी और डीबी में बोल दिया है कि तुम इसमें कोड लिखो, और उसमें टाइप कास्टिंग तुमको करना पड़ेगा, एंड यू डोंट रिमेम्बर और गलत हो रहा है डेट टाइम वाला फंक्शन, तो और एक हैक है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव डेटा एग्जैक्टली इन दिस फॉर्मेट, जिसमें तुमको मंथ आईडी मिला है, मंथ मिला है और ईयर मिला है। तो इसको नहीं लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है? वेयर month ID between 8 and 12 and year ID equal to क्वेश्चन 2003 था, राइट? हाँ, क्लियर? मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर डेट के साथ खेला ही नहीं। ऑलरेडी मेरे पास कॉलम्स थे मंथ आईडी और ईयर आईडी, मैंने तो ऐड सर तो अपने मंथ और ईयर को सेग्रीगेट कर दिया। नहीं, ऑलरेडी डेटा में है। मतलब अगर तुम्हारे पास ऑर्डर डेट बोल कोई कॉलम है ना, उससे तुम मंथ और ईयर क्रिएट कर सकते हो, राइट? लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि तुम क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ऑर्डर डेट जो है वो डेट फॉर्मेट में ही नहीं है। इतना सब हम जो डिस्कशन कर रहे हो इसलिए कर रहे हैं कि ऑर्डर डेट डेट फॉर्मेट में नहीं है ना।
Okay, sir. राइट, ऑलरेडी डेटा में था, तो आई एम एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है, सो हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं मंथ को 8 और 12 में रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। व्हेन आई अगर मैं सिर्फ इतना एग्जीक्यूट करूँ तो सारे फॉर ऑल द इयर्स अगस्त से दिसंबर तक का डेटा फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद मैं एंड कंडीशन डाल के ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ 2003 का अगस्त से दिसंबर चाहिए मेरे को, विच इज एसेंशियली दिस ओनली। इतना क्लियर ऑन दिस, राइट? ये सेम रिजल्ट देगा, 293 आना चाहिए। लेट्स सी। ओके, सॉरी, वो पाइथन में एक्चुअली डबल इक्वल टू होता है, तो आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, 293 क्लियर, राइट? Yes, sir. या फिर और एक चीज है, ये मंथ जो है वो 12 से ज्यादा तो होगा नहीं, ज्यादा हो सकता है क्या? जी, हो सकता है। no, sir. नहीं ना, तो मैं बिटवीन भी क्यों लिखूं? बिटवीन भी क्यों लिखूं? मैं ये लिखूंगा, चलेगा? जी, sir. ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन करता हूँ। अब बोलो, क्या करेंगे? First, we have to join another table Why do we need to join? That's the first question. because data of USA is not here. Okay, so what are the two tables that you're talking about? Come on, give it a try. Sir, just back to ERD diagram. Yeah. We can go for the check the table columns in customer table. Customer table. Okay. And we can go for the country. Okay. राइट, तो क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मेरे को ऑल द ऑर्डर्स चाहिए व्हिच बिलोंग टू कस्टमर्स फ्रॉम यूएसए एंड आर स्टिल इन प्रोसेस। ठीक है, अभी जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो ना, मतलब जब ज्वाइन करने का सोच रहे हो ना, तब भी तुम्हारे दिमाग में ना एक काइंड ऑफ हायरार्की आना चाहिए कि ये मेरा मेन टेबल है, इस टेबल में ऐसा इंफॉर्मेशन है नहीं, तो मैं ज्वाइन करूंगा उस टेबल के साथ, उससे कुछ इंफॉर्मेशन आएगा, उसको मैं फिल्टरिंग ग्रुप वाइज जो करने करूंगा। अभी ये ऑर्डर्स ही पूछ रहा है जिसमें कुछ फिल्टरिंग लगाना है मेरे को, बाद में क्या लगाना है वो बाद में देखूंगा, बट क्वेश्चन पढ़ के मेरे को ये समझ आ रहा है कि मेरा सेल्स ऑर्डर जो टेबल है वही मेरा मेन टेबल है। मेरे पास लोकेशन या कंट्री है नहीं, सो आई विल ज्वाइन, बट जो मेन एक्टिविटी होगा वो सेल्स ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो एक बार सेल्स ऑर्डर का कोड लिखता हूँ। सेल्स ऑर्डर, राइट? ओके, अब लाइक यू राइटली सेड, यूएसए या कंट्री कुछ है नहीं, तो मेरे को कस्टमर्स के साथ जोड़ना है, राइट? Yes, sir. कस्टमर ऑन एस डॉट कस्टमर आईडी कस्टमर, ओके, ये अभी ज्वाइन होगा, करेक्ट? अब राइट टेबल का सब डिटेल्स राइट में ही आएगा बाद में, राइट? तो इसमें मेरे को कस्टमर नेम मिल रहा है, फोन, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री। ठीक है, अभी आगे बताओ।
Sir, where the country is not equal to USA, the second condition. ठीक है, आगे। What about the process? Is there any column about the status, sir? करेक्ट। अब मतलब पता नहीं चल रहा है ना, क्वेश्चन से ही पता नहीं चल रहा कि इन प्रोसेस क्या हो सकता है। तो अब डेटा को अच्छे से देखेंगे, राइट। जितना क्वेश्चन पढ़ के समझ रहा था मैंने समझ लिया, बट मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अब मैं डेटा अच्छे से देखूंगा, आई विल नॉट वेस्ट फर्दर टाइम ट्राइंग टू मतलब लॉजिकली थिंक कि इन प्रोसेस क्या हो सकता है। तो अब देखो इन प्रोसेस कहीं कुछ दिख रहा है, शायद स्टेटस में होगा फर्स्ट, मतलब आइडिया मेरे को मिल रहा है शायद स्टेटस कॉलम में इन प्रोसेस हो सकता है, या फिर और कहीं पे इन प्रोसेस जैसा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। डील साइज नहीं, स्मॉल मीडियम लार्ज जो होगा वो, कस्टमर नेम, फोन, एड्रेस, सिटी, ये सब में कुछ नहीं होगा। तो मैं फर्स्ट चेक विल बी, अगर मैं ये स्टेटस कॉलम देखूं, ठीक है, तो इसको अलग से देखता हूँ। सिलेक्ट है इन प्रोसेस, राइट। Yes, sir. इसको लेंगे, अब क्या करेंगे, एक सेकेंड। हाँ, And status is equal to in process. परफेक्ट, ये आउटपुट है। ठीक है, दो फिल्टर लगाया मैंने कि यूएसए छोड़ के बाकी जितने ऑर्डर्स हैं उनमें उनमें से कितना इन प्रोसेस है, राइट। क्लियर ना एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, अगेन जस्ट टेक 10-15 सेकेंड्स, जिनको थोड़ा इशू हो रहा था समझने में, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, व्हाट डू वी डू स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, ये बताओ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा टेबल आइडियली लग रहा है देखना चाहिए? Product table, sir. ठीक, प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट से देखें जरा, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ठीक है, अब बताओ, प्रोडक्ट लाइन मतलब कैटेगरी समझ लो, ठीक है। इसका ग्रैनुलरिटी, ओके, डू यू गाइस नो द टर्म ग्रैनुलरिटी? Yes, sir. ओके, इसका ग्रैनुलरिटी क्या है? इस इसका जो आउटपुट होगा ना, पढ़ के क्या लग रहा है, ये प्रोडक्ट्स की ग्रैनुलरिटी पे रहेगा तो थोड़ा बहुत फिल्टरिंग करके, या फिर ग्रैनुलरिटी ही चेंज हो जाएगा? मतलब या तो किसी के साथ ज्वाइन करके और बड़ा हो जाएगा, या फिर ग्रुप बाय करके कुछ छोटा हो जाएगा, क्या लग रहा है? सर इसमें ही थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि प्रोडक्ट कैटेगरीज तो है, प्रोडक्ट लाइन भी है, जिसमें मोटरसाइकिल से क्लासिक कार्स भी है, प्रोडक्ट कैटेगरी लेकिन मतलब ही प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, जस्ट कंफ्यूजन। जी, हाँ, who have less than 20 vehicles under them. मतलब सर इनमें से कुछ व्हीकल्स का भी कैटेगरी है क्या, जो मोटरसाइकिल्स में कितने कैटेगरी है, यहाँ पे तो प्राइस है, तो थोड़ा सा नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट कर। ये मॉडल आईडी पकड़ लो, मतलब प्रोडक्ट कोड इज मॉडल आईडी, मतलब मोटरसाइकिल में
ये एक मॉडल है, वो एक मॉडल है, तो मोटरसाइकिल में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो ये जो लेस देन 20 मतलब 20 व्हीकल्स 30 मतलब कितने वेरिएंट्स हैं, थिंक ऑफ इट एज वेरिएंट्स। ठीक है, लेट मी थोड़ा हेल्प आउट। अभी fetch all product categories, राइट। इससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि प्रोडक्ट्स टेबल के साथ खेलना है, ठीक है। अब उसको आउटपुट चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। कुछ कंडीशंस उसने बोला है, वो बात का बात है, बट उसको चाहिए सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरीज। इधर तुम अगर ये डेटा देखो, इसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज जो है रिपीट हो रहा है, बिकॉज इसका ग्रैनुलरिटी प्रोडक्ट कोड है, राइट। तो मतलब अगर मैं कुछ भी फिल्टरिंग ना करूं, राइट, अगर मैं कुछ भी फिल्टरिंग ना करूं और सारे प्रोडक्ट, एक सेकंड एक सेकंड, ओके, हाँ, अगर मैं कुछ भी फिल्टरिंग ना करूं, राइट, और सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज अगर मेरे को दिखाना हो, तो मेरे को ये करना है, राइट, ये करना है ना। ये सारे प्रोडक्ट कैटेगरी yes, 7 हैं टोटल। कार्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, ट्रक्स एंड बसेस, विंटेज कार्स, मोटरसाइकिल, शिप्स, राइट। ये समझ आ रहा है ना सबको कि कुछ फिल्टर नहीं होता तो ऐसे yes, sir. हाँ। अब देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी का अगर 20 से नीचे है तो वही दिखाओ। 20 से नीचे वेरिएंट है मतलब 20 से नीचे रिकॉर्ड है। एक वेरिएंट ने एक रिकॉर्ड लिया, राइट। तो यहाँ पे अगेन फिर हमारा पुराना कॉन्सेप्ट ग्रुप बाय आएगा, राइट, हैविंग काउंट ऑफ लेस देन 100। काउंट ऑफ वन का ये सबको पता है ना, काउंट ऑफ वन क्या होता है और काउंट ऑफ कॉलम नेम क्या होता है, पता है ना, राइट। नहीं पता तो बताओ, मैं रिपीट करूंगा। आशीष, Yes, sir. काउंट का पता है सर। काउंट ऑफ वन पता है ना क्या होता है? काउंट ऑफ वन, सर काउंट का पता है सर। काउंट ऑफ अच्छा वन थोड़ा सा भूल गया। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो काउंट फंक्शन के साथ ना तुम लोग शायद ऐसा करते होगे, कुछ एक कॉलम नेम देते होगे, राइट, मान लो ऐसा देते होगे, प्रोडक्ट लाइन, या फिर काउंट ऑफ स्टार देते होगे, राइट, यस सर। ऐसे देते हो। अब एक नया चीज है काउंट ऑफ वन, राइट। ठीक है, अभी क्या है, एक बात बताओ, एक्सेल में चलते हैं, ठीक है, और एक्सेल में देखते हैं इसको। देखो दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है ना। मान लो ये कॉलम है, ठीक है, अम्म, मान लो सैलरी है और ग्रुप है, तो बड़ा करता हूँ। दिख रहा है सबको, राइट। यस सर। ये है मेरा इनपुट डेटा, ठीक है, ओके। अब मेरे को ये बोलो, अगर मैं
बिना कोई ग्रुप बाय यूज करके सिर्फ काउंट ऑफ ग्रुप करो, सिलेक्ट काउंट ऑफ ग्रुप फ्रॉम टेबल, ऐसा समझो, टेबल का नाम टेबल ही है, सिलेक्ट काउंट ऑफ ग्रुप फ्रॉम टेबल, तो आंसर क्या आएगा? 13. 13 आएगा। सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम टेबल करूं तो 13. ठीक है। अब सिलेक्ट काउंट ऑफ वन तुम लोग पता नहीं, ठीक है। अभी अभी कॉलम चेंज कर देते हैं, अभी बोलो कि सिलेक्ट काउंट ऑफ सैलरी करो तो कितना आएगा? 13 आएगा. श्योर? Yes sir. नहीं, 13 नहीं आएगा। जब So तुम count 9 आएगा. काउंट 9 आएगा, करेक्ट। तो अभी तीन चीजें, राइट? काउंट ऑफ वन है, काउंट ऑफ स्टार है, और काउंट ऑफ कॉलम नेम है, ठीक है। अभी काउंट ऑफ स्टार करोगे तो 13 आएगा, ठीक है। वो काउंट ऑफ कॉलम नेम में ना टेक्स इनटू अकाउंट वैल्यूज, तो जितने नल वैल्यूज है उसको कंसिडर नहीं करेगा। किसी भी कॉलम पे अगर कर रहे हो ना काउंट, जैसे अगर मैं ग्रुप पे करूंगा ना तो 13 आएगा, एम्प्लॉय आईडी पे करूंगा तो 13 आएगा, बट सैलरी पे करूंगा तो 9 आएगा, क्योंकि नल वैल्यूज को वो काउंट नहीं करता। काउंट ऑफ स्टार अगर करूं, जो कि स्टार मतलब क्या, पूरा रिकॉर्ड ले रहा है, ठीक है, तो जितने रिकॉर्ड्स हैं उतना काउंट देगा, जो कि 13 है, ठीक है। काउंट ऑफ वन क्या करता है ना, अभी ये क्या हो रहा है देखो, मेरा पीजी एडमिन दिख रहा है? यस सर। अभी देखो ये अगर मैं करूँ ना, प्रोडक्ट लाइन, एक सेकंड कुछ गलत लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट लाइन, ओके, प्रोडक्ट है, सॉरी, ठीक है। इसमें कभी ऐसा ट्राई किया तुम लोग ने, ऐसा करके, ये कभी ट्राई किया ये चीज? No sir. ठीक है, इसको करोगे ना एक कॉलम बन जाएगा, सिलेक्ट में डाला है तो कुछ कॉलम ही बनेगा, राइट, जिसके सारे वैल्यूज वन होंगे। देखो जितने रिकॉर्ड थे उतने वन आएगा, कुछ डल नहीं आएगा, करेक्ट, ठीक है। अब एक बार ही कॉलम क्रिएट हो गया, सारे वन है, राइट, तो अगर मैं काउंट ऑफ वन करूं तो उतने ही आएंगे जितने रिकॉर्ड हैं, राइट, वो नंबर। तो इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ये रिजल्ट सेम ही देंगे। अगर काउंट ऑफ कोई और कॉलम यूज करूं जिसमें नल वैल्यूज हैं तो वही रिजल्ट अलग आएगा, अदरवाइज काउंट वन ऑफ काउंट स्टार सेम आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सेम आएगा तो करने की क्या जरूरत है, काउंट ऑफ स्टार से काम चल जाएगा ना। तो जब कोई बड़े डेटाबेस के साथ काम करोगे, मान लो अमेजोन, या फिर अमेजोन से बेटर एग्जांपल चल गूगल यूपीआई ले लेते हैं, क्रोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट, तो काउंट ऑफ वन बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है, उसके जो रन टाइम है बहुत कम है। इसलिए जब when you start working, or maybe if you're working, you would have seen a lot of people writing count of one or count of something, a constant, instead of count of star or count of a column name in some places, so that जल्दी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए। नहीं तो क्वेरी रन करोगे 2 घंटा बैठोगे, कुछ आगे बढ़ नहीं पाओगे, राइट, तो इसलिए क्लियर ऑन दिस, राइट? यस सर। ठीक है। अब एक सेकंड, ओके, अब इस पे आते हैं, हाँ क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, थोड़ा हम लोग साइडवेज चले गए थे। तो जिनका लेस देन 20 व्हीकल्स है सिर्फ वही प्रिंट करना है मेरे को, राइट। अभी सीन ये है कि इसमें बोल रहे इसमें ट्रेन भी आ रहा है, पहले 7 कैटेगरीज थे, राइट,
अभी फिल्टर मैंने एक लगाया हैविंग क्लॉज यूज करके तो 5 आ रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि ट्रेन नहीं आना चाहिए, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करूं? सर वेयर प्रोडक्ट लाइन इज नॉट इक्वल टू ट्रेंड्स। उसको वेयर में लिखूंगा या हैविंग में लिखूंगा? सर वेयर में लिखेंगे। हैविंग में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? नो सर, हैविंग में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? Sir, because where clause is used to filter the rows in terms of criteria, and having is used to filter the grouped rows, and the train is not grouped here. ओके ठीक है। अ बेटर आंसर वुड हैव बीन हैविंग वाला फिल्टर तभी लगा सकते हो जब कुछ एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ है, राइट? तो मैं ये ट्रेन वाला जो फिल्टरिंग है उसको हैविंग से कर नहीं सकता, मेरे को डायरेक्ट कंपेयर करना है कि इस रिकॉर्ड में ट्रेन है तो इसको हटा दो, इसमें कुछ एग्रीगेट फंक्शन नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको वेयर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। प्रोडक्ट लाइन इक्वल टू ट्रेन, राइट? करेक्ट? Yes, sir. नो, नॉट Is इक्वल not टू, equal to trend. Not equal to not. राइट? समझ आया ना सबको? एनी डाउट्स हियर? नो डाउट्स? ओके। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एकदम हड़बड़ाहट मत करना, आराम से सोचो, टाइम लो और बताओ मेरे को। You have to check the columns of order table. कौन सा कॉलम चेक करेंगे अनु? So we have to explore the table, like check the sold. नहीं, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग में मत जाओ, स्टेप बाय स्टेप लो। पहले बताओ कि मेन टेबल कौन सा है, वो पता है ना तुमको? सर प्रोडक्ट टेबल पे जाएंगे सर। ठीक है, उसके बाद उसका दिमाग में क्या आ रहा है, मतलब जो आ रहा है बोलते जाओ, टेंशन मतलब सही होगा गलत होगा उसका टेंशन नहीं। ठीक है, इसको मतलब अब रियल लाइफ सिनेरियो में सोचो, ऐसा कभी होता है कि कोई दुकानदार है जो एमआरपी से ज्यादा प्राइस में बेच रहा है? जी सर, होता है। होता है ना? तो वो जो बेच रहा है वो ट्रांजैक्शन टेबल है ना, ऑर्डर्स टेबल है, वो सेल्स ऑर्डर टेबल है, राइट? उसको यस सर। कंपेयर करना है, उसका और एक कोई टेबल होगा जिसमें उसका ओरिजिनली एमआरपी मार्क्ड है, जो कि प्रोडक्ट्स टेबल है हमारा, जिसमें उसका प्राइस लिखा हुआ है हर एक प्रोडक्ट का, राइट? तो मेरे को इन दोनों टेबल को कंपेयर करना है,
सेल्स ऑर्डर टेबल में उसका एक्चुअल सोल्ड प्राइस है और प्रोडक्ट्स टेबल में आइडियल सोल्ड प्राइस है या फिर एमआरपी है। अब किसी तरह मेरे को उसको ज्वाइन करना है और कंपेयर करना है। ये समझ आ रहा है ना, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना कि क्या बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में? यस सर, बेसिकली दोनों टेबल को हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट, एक्चुअल प्राइस वाला। करेक्ट। ये सेल्स ऑर्डर है, राइट। अब मेरे को इसको ज्वाइन करना है। किस पे करूंगा ज्वाइन? Product ID, product code. करेक्ट। ओके, गड़बड़ क्यों हुआ? आइडिया है? सर ये कॉलम नेम डिफरेंट हो सकता है इस टेबल में। करेक्ट, करेक्ट। तो इधर है प्रोडक्ट और इधर है प्रोडक्ट कोड। तो सेल्स ऑर्डर में प्रोडक्ट है, राइट। ठीक है, आ गया। ठीक है, अभी राइट साइड में आ गया होगा इसका ओरिजिनल प्राइस, राइट। आप बताओ। अब क्या करना है? डेटा मैंने बना लिया। सर एक बार लेफ्ट को स्क्रॉल करेंगे। हाँ, तुमको और एक टिप दे रहा हूँ, जो कि मतलब मैं तो फॉलो करता ही हूँ, इसलिए मेरा टिप है। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब दिमाग काम करना बंद कर जाता है जब मैं इतने सारे कॉलम्स देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से मेरे को जितना कॉलम्स लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं उसी को सिर्फ सिलेक्ट में डालता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। तो मेरे को इतना स्क्रॉल लेफ्ट राइट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इफ यू फाइंड द टिप टू बी हेल्पफुल, तुम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे वापस आता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि एक्चुअल प्राइस एक है जिसमें सेल किया गया है और एक आइडियल प्राइस है। इन दोनों कंपेयर करना है, राइट। कंपेयर करके फिल्टर करना है। तो सिंपल, वेयर इसका सोल्ड प्राइस क्या है, प्राइस ईच है ग्रेटर देन जो आइडियल प्राइस था, उस कॉलम का नाम है प्राइस। यही है क्वेरी। क्लियर? क्लियर है ना? यस सर। अभी चलते हैं एक्सेल में। ठीक है, एक चीज तुम लोगों को पूछता हूँ मैं। देखो, दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस सर। अभी मान लो, इसी को लेते हैं।
ठीक है, दो टेबल पता चल रहा है क्या है, राइट। अभी इसको मैं अगर इनर ज्वाइन करूं तो कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? सर 13 रिकॉर्ड आएंगे। करेक्ट, 13 30 आएंगे, राइट। अभी मान लो इसमें ना एक मंथ बोल के कॉलम है, लेट्स कंसीडर ओनली ईयर 2023 और इसमें एक मंथ कॉलम है, ठीक है। अभी ये जो एम्प्लॉय आईडी 1000 है ना, ठीक है, उसका 12 महीने का सैलरी है, उसने कुछ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये नीचे आएगा, राइट, ये यहाँ आएगा, ये रिपीट होगा, करेक्ट, सही है ना मैंने? 13 एक ज्यादा हो गया शायद। समझ आया ना? उसने 12 मंथ्स की सैलरी लिया 2023 में, जो एम्प्लॉय आईडी 1000 है, करेक्ट। यस सर। तो वैसे ही सबने लिया है, मैं डेटा सेट बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो 13 एम्प्लॉयज है, ठीक है, 13 एम्प्लॉयज, सबने 12 मंथ का सैलरी लिया है, राइट। तो जो टेबल ए है वो कितना बड़ा होगा? 13 into 12 होगा, हर एक एम्प्लॉय का हर एक मंथ का सैलरी है, राइट। तो 13 into 12 156, यहाँ पे 156 एंट्रीज है, ठीक है, क्लियर, राइट। यस सर। अभी अगर मैं इनर ज्वाइन करूँ तो कितने आएंगे? सर 156 ही आएगा। करेक्ट, 156 ही आएगा। यहाँ से शुरू होगा, ये 1000 को यहाँ ढूंढेगा, राइट, उसको मिल गया, ये 1000 को यहाँ ढूंढेगा, उसको मिल गया, एसआर के सब मिल जाएंगे उसको, तो 156 ही आएगा, राइट। अब मान लो ऐसा कुछ है, आप कितने आएंगे? ऐसा कुछ एक्सरसाइज हमने कल किया था, राइट, बट कल वो थियोरेटिकल था, आज मैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज करने का इंपॉर्टेंस क्या है। इसका आंसर तुम लोग दोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। कम ऑन ट्राई। सर एक अगर आपने रो जोड़ दिया ये 1000 और अभी जितनी हो करके, हम्म, तो सर इनर जॉइन होगा तो सेम ही होगा ना, 156 के रिकॉर्ड ही मतलब ये ढूंढ के लाएगा। नहीं, ये 1000 है, यहाँ से शुरू होगा लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट, एक सेकंड, यहाँ शुरू होगा। अब मैं इस 1000 को यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, तो मेरे को दो जगह मिला है, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। तो जी इसके सर। करेस्पॉन्डिंग दो रिकॉर्ड आएंगे, लाइकवाइज इस 1000 के भी दो रिकॉर्ड आएंगे, ऐसे करके ये जो 12 रिकॉर्ड्स है इनके लिए 24 रिकॉर्ड्स आएंगे, करेक्ट। पहले यस 1000 सर। के लिए 24 आएंगे, लेकिन बाकी सबके लिए
1001 के लिए 12 ही आएंगे, राइट। बाकी सबका 12 है, क्योंकि उसका एक ही है यहाँ पे 1002, 12 मंथ का ही है, राइट। बट इधर एक ही एंट्री है, 1001 एक ही बार है, 1002 एक ही बार है। क्लियर, क्लियर है ना। यस सर। तो आएगा कितना टोटल, 168। 156 पहले आ रहा था, बस 1000 के लिए 12 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 156 प्लस 12। क्लियर। यस सर। यस। हाँ, अभी देखो, अभी प्रैक्टिकल यूज केस इसका ये है कि ये जो टेबल है एम्प्लॉय आईडी और नेम जिसमें है, इसमें एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए एक एम्प्लॉय का, राइट। राइट ना, इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं है, ओके सर। राइट। मतलब एक एम्प्लॉय आईडी में एक ही नाम होगा ना, अगर उसने चेंज करवाया तो अभिजीत 1 से अभिजीत न्यू वो चेंज होगा और एक एंट्री क्रिएट नहीं होगा इन ए रियल लाइफ, यस सर। राइट। और ये सैलरी टेबल है, इसमें एक एम्प्लॉय की मल्टीपल एंट्रीज होंगे बेस्ड ऑन द मंथ एंड द ईयर। अभी जब मैंने इनर ज्वाइन करवाया तो तुमको दिमाग में ऐसा आइडिया होना चाहिए कि इधर जितने हैं ना 156, जब तुम ज्वाइन करो उसके बाद वो 156 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 156 से ज्यादा है मतलब जो दूसरा टेबल है ना उसमें कहीं पर डुप्लीकेट एंट्रीज है, तभी 156 से ऊपर हो जाएगा। 156 से कम हो सकता है, राइट। अगर उसको 100 मतलब 1000 यहाँ मिले ही नहीं तो 156 से कम हो सकता है, या 156 ही रहेगा अगर एकदम एग्जैक्ट मैच है, सारे हैं। 156 से ज्यादा वो कभी नहीं हो सकता अगर डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं है तो। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। जी सर। ठीक है, इसको जब तुम काम अगर कर रहे हो, अगर इम्प्लीमेंट मतलब ये हैक अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। इससे बहुत क्विक कंपैरिजन कर पाओगे। ये काइंड ऑफ डेटा सैनिटी चेक है कि तुम जो ज्वाइन कर रहे हो तुम्हारा ज्वाइन का जो लॉजिक है ना वो सही है, क्योंकि कभी भी एंट्री ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अभी इस यहीं पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये मेरा सेल्स ऑर्डर है ना, कितने रिकॉर्ड है इसमें, 2823 है, करेक्ट। इसको मैं ज्वाइन करूंगा प्रोडक्ट के साथ, राइट। तो 2823 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, हो सकता है क्या। नो सर। तो 2823 आ रहा है, तो ये था सैनिटी चेक। क्लियर। यस सर। ओके, ठीक है। हम्म, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, अब थोड़ा डिफिकल्ट है बट कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ, अगर लिखता हूँ। ये बताओ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। दुकानदार बन जाओ, मतलब दुकानदार के टर्म्स में सोचो। जैसा क्वेश्चन है जिस डेटा सेट के साथ कर रहे हो ना एकदम उसी सिनेरियो में चले जाया करो, बहुत जल्दी समझ पाओगे क्वेश्चन मतलब पूछ क्या रहा है तुमको। अभी तुम अगर एक शॉपकीपर हो तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बताओ। क्या रहा है बताओ, समझाओ मेरे को। अनु, अमितोष, आशीष, बाकी सब। हाँ, इन केस लाइक जो एमआरपी होता है जब उससे कोई कुछ टैक्स वगैरह ऐड करके अगर हम उसको बेच रहे हैं
ओके, नहीं यहाँ पे एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे सोल्ड प्राइस ही है जिस प्राइस में दुकानदार ने बेचा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि वो सब रिकॉर्ड्स मेरे को दो जहां पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है अपने एवरेज सोल्ड प्राइस ही है, एमआरपी नहीं है, एवरेज सोल्ड प्राइस से ज्यादा बिका है। मतलब एक प्रोडक्ट है, मान लो यहाँ तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट कोड है, वो ऐसे बिका है, 1 रुपए में पहले बिका है, फिर 2 रुपए में, फिर 1 रुपए में, फिर 1 रुपए में, फिर 6 रुपए में, फिर 1 रुपए में, 1 रुपए में, 2 रुपए में। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसे ऐड करते हैं, 4, 5, 11 और 15, राइट। इसका एवरेज निकालते हैं, 15 डिवाइडेड बाई कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 8 है ना, तो इसको 3 कर देते हैं, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 16/8 एवरेज कितना आया, 2 आया, सोल्ड प्राइस ये। तो मेरे को वो सब एंट्रीज चाहिए जहां पे इन ये जो प्राइजेस है ना, सोल्ड प्राइस, वो एवरेज से ज्यादा है। मतलब मेरे को ये 6 चाहिए और मेरे को ये 3 चाहिए, ये एंट्रीज चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? अब पढ़ो क्वेश्चन। क्लियर है ना क्वेश्चन, या अभी भी कंफ्यूजन है? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन रह रहा है सर। हाँ देखो, अब एमआरपी भूल जाओ। ठीक है, ये जो लोग यूपीआई स्कैन, मतलब क्यूआर स्कैन करके यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं ना, मान लो मैं दुकानदार हूँ, मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचता हूँ, ब्रेड बेचता हूँ सपोज। ठीक है, मान लो 20 रुपए का पैकेट आता है। ठीक है, एमआरपी 20 रुपए का है, बट एमआरपी से मेरे को मतलब नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशंस देश का जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत खराब है, तो आई कैन मतलब डिमांड एक्स्ट्रा मनी, मान लो। ठीक है, अब मैंने बोला, किसी को 25 बोला, किसी को 30 बोला, किसी को 35 बोला। ठीक है, वो देते जा रहा है। ठीक है, बट ये जो मैंने बोला है, किसी को 20 बोला, किसी को 25 बोला, किसी को 35 बोला, जैसे जैसे बिका है ना, इन सबका क्या एवरेज होगा, राइट, कि एवरेज प्राइस इतना है, जो निकल के मान लो 30 आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को वो ट्रांजेक्शन चाहिए जो 30 रुपए से ऊपर में लोगों ने पेमेंट किया है। उससे मेरे को क्या पता चलेगा, मतलब कुड बी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कस्टमर्स है जिनके पास, जिनको फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा पे करने में, तो मैं उनको याद रखूंगा सो दैट फ्यूचर में वो जो मेरे दुकान में आए, मैं ज्यादा पैसे मांगूंगा, मैं 35 की जगह अब 40 मांगूंगा, 50 मांगूंगा एक 20 रुपए का पैकेट के लिए। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। राइट, अब क्वेश्चन पढ़ो, अभी समझ आ जाएगा अच्छे से। आ रहा समझ में? राइट, इसमें एमआरपी का कोई सीन नहीं, इसमें सिर्फ सोल्ड प्राइस से हमको मतलब है कि एक प्रोडक्ट का जो सोल्ड प्राइस है ना, उसका एवरेज निकालो और फिर कंपेयर करो कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन में जो सोल्ड प्राइस है वो एवरेज सोल्ड प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट से ज्यादा है। क्लियर? कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अमितोष, क्लियर? Yes, sir. बताओ कौन सा टेबल लेना है। So this one, the joint table of product and order status. फिर से बोलो। The joint table of order sales and product. प्रोडक्ट लेने का फायदा क्या है बताओ। We have to find the product which have sell greater than its original price. हाँ, नहीं ओरिजिनल प्राइस वही तो मैं बोल रहा हूँ, एमआरपी का यहाँ पे सीन ही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड। हम्म
प्रोडक्ट्स। ओके, एमआरपी का तो यहाँ पे सीन ही नहीं है ना, मेरे को तो सोल्ड प्राइस का एवरेज निकाल रहा है, ओरिजिनल प्राइस से कोई मतलब ही नहीं मेरे को, समझ आ रहा है ना? Sir, average of sales price group by category. एक सेकंड, मैं लिख लेता हूँ, एक सेकंड, इतना फास्ट Okay. नहीं। Okay, sir. सेल्स ऑर्डर, हाँ अब बोलो, इसको मैं एक बार डिस्प्ले कर दूं, अब बोलो। हम्म, Sir, just scroll right. Group by product. ग्रुप बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ना, Yes, sir. हाँ फिर आगे। Hmm. Instead of star, just write average of. हम्म, एवरेज ऑफ, Scroll left. हम्म, प्राइस ईच, Price each. हाँ एग्जीक्यूट कर दो। No, sir. We have to find greater than. So having clause is there. बोलो। Average price each greater than हम्म, price each. राइट, यही है ना? Yes, sir. ठीक है, आशीष एंड अनु, डू यू थिंक दिस इज करेक्ट और यू वांट टू मेक एनी चेंजेस? So we should go with it. अनु, Yes, sir. ओके ठीक है, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये गलत है, एक बार देख लेते हैं। Sales column. हाँ बोलो। Sales column आएगा sir. नहीं नहीं, Price is कॉलम सही है, कॉलम प्राइस ईच ही है, बट ये कोड गलत है। ठीक है, उसका रीजन ये है, मैं फिर से एक्सेल में जाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इसी में हो जाएगा, इसी में। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है मेरा बात, एक बात बोलो, अभी तुम लोग जो आसपास रहते हो, मतलब अपने घर के आसपास रहते हो या जिस कॉलेज या जिस स्कूल में गए हो, उन्हीं को जानते हो, मेरे को इससे पहले जानते नहीं थे, या फिर 140 करोड़ पॉपुलेशन है, सबको तो नहीं जानते हो ना, तो जिसको जानते हो उसके साथ कंपेयर कर सकते हो खुद को, कि तुम कितने बेटर हो, या फिर तुम्हारे पास ये फोन है, उसके पास वो फोन है, जो भी कंपैरिजन करना है, राइट? कंपैरिजन के लिए जानना जरूरी है कि ऐसा कोई इंसान है जिसके पास ये है, जिसको जानते नहीं हो उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, करेक्ट? Yes, sir. कंपेयर करोगे तो ही फिल्टर करोगे कि मैं इससे इस चीज में बेटर हूँ, राइट? मतलब मैं वेयर कंडीशन की तरफ ही जा रहा हूँ, अगर तुम मेरा बात समझ पा रहे हो। अभी फिल्टरिंग करने के लिए अगर वेयर कंडीशंस में करूँ, मान लो मैं स्टेटस में करूंगा, करेक्ट, ये है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वैल्यू के साथ उसको कंपेयर कर रहा हूं, राइट? अब मैं दो कॉलम को भी कंपेयर कर सकता हूं, जैसे मान लो ऐसा, मान लो ऐसा ऐसा, ऐसे ले ले रहा हूँ, मतलब इसका लॉजिकली कोई सेंस बनता नहीं है, बट समझाने के लिए ले ले रहा हूँ, ठीक है? क्वार्टर आईडी ग्रेटर देन मंथ आईडी, ये कंपैरिजन कुछ, अच्छा रिकॉर्ड्स नहीं आ रहा, एक सेकंड को, नॉट ए गुड चॉइस।
हाँ ठीक है, ये ले लेते हैं। चलो, ऑर्डर आईडी, डोंट गो बाय द लॉजिक कि मैं मतलब लॉजिकली सही लिख रहा हूँ या नहीं, क्योंकि लॉजिकली दिस डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, मैं बस कुछ और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को। ऑर्डर आईडी डजंट एग्जिस्ट, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर। ठीक है, अभी देखो कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये जो कंपैरिजन है ना, ये मैं क्यों कर पाया, क्योंकि दोनों साइड बाय साइड है। मतलब ये 22 कंपेयर हो रहा है 20 के साथ, 23 कंपेयर हो रहा है 21 के साथ, पूरा साइड बाय साइड कंपैरिजन चल रहा है। जिसको तुम जानते हो, जो तुम्हारे पास है, उसी के साथ कंपेयर कर रहे हो और फिर फिल्टर कर दे रहे हो। करेक्ट? यस सर। अभी इस क्वेरी को ध्यान से देखो, ये लाइन को देखो। सर इसमें दो क्वेरी लगे, एवरेज प्राइस ऑफ ईच के लिए और एक क्वेरी लगेगा सर, सब हम्म क्वेरी। हम्म मतलब अब समझ तो आ रहा है कि गलत इसमें क्या है, तो मैं उसको थोड़ा और अच्छे समझा दे रहा हूँ। अभी हमने जब ग्रुप बाय कर दिया, राइट, तो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। अभी मान लो 30 प्रोडक्ट थे, तो मेरे ग्रुप बाय डेटा सेट में 30 एंट्रीज हैं। करेक्ट? ओरिजिनल में कितने हैं? 3000 रिकॉर्ड्स हैं। दोनों का लेंथ सेम है क्या? मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। नहीं सर। साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए सेम ग्रैनुलरिटी में रह के मैं वेयर कंडीशन में डालूंगा तो कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता। एग्जाम्पल, ये कोड चल जाएगा, आउटपुट दे या ना दे। देखो, ऑब्वियसली सम हमेशा एवरेज से ज्यादा ही होता है, एक्सेप्ट अगर एक एंट्री हुआ। मतलब मतलब इफ यू गॉट मी, यू गॉट मी। मतलब अगर एक एंट्री है ना, सपोज किसी एक ग्रुप बाय वैल्यू के लिए, मतलब एक वेरिएबल है, सपोज एक प्रोडक्ट लाइन है, ट्रेन, ट्रेन का एक ही एंट्री है, उसका सम और एवरेज सेम है, राइट? तो उन केसेस में सम और एवरेज सेम होगा, बट एवरेज कभी भी सम से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए तुमको यहाँ कोई रिकॉर्ड्स मिलेंगे नहीं। एनीवेज वो अलग टॉपिक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस कोड में एरर इसीलिए नहीं आया क्योंकि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो वेयर लगाया करें या हैविंग लगाया करें, सेम ग्रैनुलरिटी में कर रहे हैं। अभी ये जो हमने किया ना, इसमें इसका ग्रैनुलरिटी अलग है और इसका ग्रैनुलरिटी अलग है, तो ये कभी भी कोड रन नहीं होगा, एरर। क्लियर या नहीं समझ रहे? यस सर। यस सर। तो ये ऐसे तो सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, अब वापस घूम के आते हैं, जो मैं इतने देर से तुम लोगों को बोल रहा था कि आउटपुट का ग्रैनुलरिटी क्या होगा, बताओ पहले। ये कंडीशन अगर ना हो तो आउटपुट का ग्रैनुलरिटी क्या होगा? ग्रुप बाय होगा या ओरिजिनल ऑर्डर्स डेटा सेट होगा? ओरिजिनल डाटा सेट होगा सर। करेक्ट? ये समझ आ रहा है ना सबको कि ओरिजिनल वाले में ही मैं कुछ जी जी। फिल्टरिंग करूंगा, राइट? अब अगर ओरिजिनल वाले में फिल्टरिंग करूंगा, राइट, एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, ये है ना, ये ओरिजिनल है ना। ओरिजिनल वाला मैं अगर फिल्टरिंग करूंगा तो मेरे को फिर आगे साइड बाय साइड कंपैरिजन चाहिए। मतलब मेरे को एक कॉलम क्रिएट करना है यहाँ पे, एवरेज प्राइस बोल के, जो कि साइड बाय साइड कंपैरिजन करेगा ओरिजिनल डेटा सेट में। ये समझ आ रहा है सबको? जी सर। अमितोष, अनु, बाकी सब यस सर। राइट? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इतना हमको क्लियर हो गया कि ओरिजिनल डेटा सेट में मेरे को एक कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, क्या कॉलम क्रिएट करना है? हर एक प्रोडक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट है 1678 एक प्रोडक्ट है, ठीक है, 1949 एक प्रोडक्ट है, इसके करेस्पॉन्डिंग मेरे को एक एवरेज प्राइस चाहिए। तो जितने एंट्रीज होंगे 1949 के, उनका जो एवरेज प्राइस है वो सेम ही होगा, बट पहले एवरेज प्राइस निकालना है, राइट? तो इसको हटाओ, पहले पहले इतना एग्जीक्यूट करो, तो जितने प्रोडक्ट्स है उनका एक एक एंट्री आ जाएगा। 109 प्रोडक्ट है टोटल। करेक्ट?
ठीक है, मैंने एवरेज प्राइस निकाल लिया सबका। अब ये मेरे को थोड़ा देखने में गंदा लग रहा है तो मैं इसको राउंड कर दे रहा हूँ। राउंड फंक्शन पता है ना? यस सर। ठीक है, राउंड कर दिया, आ गया कुछ एक। ठीक है, ये जो बना है ना 109 एंट्रीज, इसको मेरे को किसी तरह 3000 में कन्वर्ट करना है। 3000 एंट्रीज थे ना सेल्स ऑर्डर में, 2898 ऐसा कुछ था, करेक्ट? कैसे करूंगा अब बताओ? ये उधर कैसे आएगा कैसे कॉलम बन के? ऐसे आएगा। अब मैं ज्वाइन करूंगा इसको। मान लो इसको सिटी, सिटी पता है सबको? Yes, sir. पता है ना? ठीक है, मान लो इसको मैंने सिटी में सेव कर दिया। ठीक है, तो जिनको थोड़ा बहुत डाउट है क्या होता है सिटी, एक टेम्परेरी टेबल जैसा है, जिसको मैं अगर चलाऊं तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक सेकंड, जल्दी From फ्रॉम, हाँ। हम्म, ठीक है, वही 109 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब ये एक सेपरेट टेबल है मान लो ऐसे। अब मेरे को ज्वाइन करना है बस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। आउटपुट मेरा ओरिजिनल क्या होना चाहिए, मतलब अ, किस पे मेरे को एक्टिविटी करना है, सेल्स ऑर्डर में करना है, इसके साथ ज्वाइन करूंगा। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, एज एवरेज सेल्स प्राइस, ज्वाइन CTESC ऑन S डॉट क्या है, प्रोडक्ट, क्या था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू C डॉट प्रोडक्ट, करेक्ट? हम्म, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? ओके, ठीक है, आगे ज्वाइन हो गई है। देखो, ओरिजिनल सेल्स डेटा सेट है, पहले 2823 था, अभी भी वो QC चेक में कर रहा हूँ, 2823 से ज्यादा नहीं हो सकता ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मेरा जो दूसरा एवरेज वाला प्राइस है, एक ही एंट्री है एक प्रोडक्ट के लिए, करेक्ट? तो अब इधर राइट साइड में एवरेज सेल्स प्राइस आया है। अब ऑब्वियसली 93 आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट सेम ही है, राइट? जैसे मैं प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को देखूंगा तो ये प्राइस चेंज होगा, 1949 का 100 हो गया। क्लियर? यस सर। अब मैं वेयर क्लॉज डालूंगा, सिंपल, आराम से, प्राइस ईच ग्रेटर देन ये तुम्हारा सोल्यूशन। देखो ये 93 है ना एवरेज सेल्स प्राइस इसी प्रोडक्ट का, राइट? इसका 95, इस एंट्री में 95 में है, तो वही, किसी ने ब्रेड 35 का खरीदा जबकि उसका एवरेज प्राइस 30 रुपए का है। ये वो सब एंट्रीज है। ये क्वेश्चन एकदम समझ आया हमने कैसे अप्रोच किया, कैसे सोल्यूशनिंग किया? यस सर। राइट, मतलब डिड यू लाइक दिस क्वेश्चन और नॉट? कि थोड़ा मतलब सोचना पड़ेगा, इट्स नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे अब तक क्वेश्चन हम करते आए हैं। कहीं पे कुछ सेव करके रखना है, कहीं से कुछ और लाना है। जो मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि कुछ करके रख दोगे, फिर उसको किसी तरह इसके साथ ज्वाइन करोगे, फिर कुछ फिल्टर लगाओगे, फिल्टर होने के बाद फिर ग्रुप बाय करोगे। ये टाइप के क्वेश्चन ही मोस्टली इंटरव्यू से पूछे जाते हैं। क्लियर? यस सर। तो इसका डिफिकल्टी लेवल तुम लोग क्या लग रहा है, लो, मीडियम, हाई में? सर मीडियम से थोड़ा ज्यादा, हाई से थोड़ा कम। ठीक है, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन ऑन दिस?
ऑल राइट, ओके, ठीक है, विल मीट टुमारो। एंड यहाँ से फिर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मैं आज शेयर करता हूँ सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चन, ये जो डेटाबेस है सब कुछ शेयर करता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करके आना। ये क्वेश्चन फिर से ट्राई करो रिकॉर्डिंग देख के, या फिर अगर तुमको याद है तुमने कुछ नोट्स बनाया है, फिर से खुद कोड लिख के ट्राई करो कि मतलब फिर से एग्जीक्यूट करने का, खुद ही कोशिश करो कि ये कोड तुम खुद अपने से लिख पाओ बिना रिकॉर्डिंग देखे या बिना कुछ किए, तो फिर थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? ऑल राइट, ओके सर, ठीक है। थैंक ये यू सर। क्वेश्चन अभी किया था ये सॉफ्ट क्वेरी से नहीं हो सकता है? सॉरी, अभी जो हमने सॉल्व किया ये विदाउट सीटी सॉफ्ट क्वेरी से नहीं हो सकता है? एक सेकंड, शेयरिंग सब क्वेरी ऐसा बोल रहे हो ना? मतलब एक सेकंड, राइट, ऐसा वेयर मैं कुछ डालूं, राइट, वेयर प्राइस ईच, ऐसा ग्रेटर देन डालोगे, यहाँ पे कुछ सब क्वेरी लिखोगे ना, यही बोल रहे हो ना? यस यस सर। अब जो सबसे सिंपल वाला सब क्वेरी तुमको पता है ना, उससे ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट प्राइसेस हैं। अगर एक ही प्रोडक्ट होता ना तो ये इजीली सब क्वेरी से हो जाता। समझ रहे हो ना? सब क्वेरी में तुमको, तुम जब ओके सर, सब गॉट इट। क्वेरी, गॉट इट ना? यस सब सर, क्वेरी के लिए तुम पहले ग्रुप बाय चीज डालोगे यहाँ पे, ये राइट। चीज डालोगे ना, उसमें एक ही वैल्यू थोड़ी है, तो मल्टीपल वैल्यूज है, राइट? वो मल्टीपल वैल्यूज को मैप करना पड़ेगा। ये सब क्वेरी से पॉसिबल है, लेकिन जो सबसे सिंपल वाला सब क्वेरी तुम जो सोच रहे हो ना, उससे नहीं होगा ये, कुछ और कंडीशंस डालने पड़ेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो किसी और क्लास में हम करेंगे। बट जॉइंट्स थोड़ा इजी होता है तो इसलिए आज जॉइंट सॉल्व किया है इसको। क्लियर? ओके सर। और कोई डाउट्स? क्लियर, राइट? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना, मैं भेजता हूँ सारा मटेरियल। ठीक है, मिलते हैं कल। चलिए, थैंक यू सर। थैंक बाय यू बाय। सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर, बाय सर।